ପ୍ରଚାର ହଉ ବା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହଉ ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯୋଉ ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଆମେ ଯୋଉମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତୁମରି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଅଟୁ ଆଉ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରୟାସରେ ଆଶୀର୍ବାଦର ହସ୍ତ ରଖ। ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ବିଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଦେଇଛୁ ସେମାନେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଖୋଲିବେ ଆଉ ତୁମରି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସୁସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଜଟିଳତା ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ମରୁଭୂମି ମାନଙ୍କରେ ଆଉ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଆଉ ଅପୋଜିସନ ଦଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଖରେ ସେ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କର। ସେ ସମସ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କର। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆମର ଦେଶରେ ଆମର ପୃଥିବୀରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କର। ଆମର ଶାସକ ମାନଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ନେତା ମାନଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ତୁମରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ପରିଚାଳନା ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡିକ ଯେପରି ଶିଶୁ ମାନଙ୍କର ପାଇଁ, ପୁରୁଷ ମହିଳା ମାନଙ୍କର ପାଇଁ, ବୃଦ୍ଧା ମାନଙ୍କର ପାଇଁ, ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କର ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ହେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଣ୍ଡଳୀ ର ସଦସ୍ୟା ଯେପରି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏକ ଉତ୍ତମ ସମାଜ ପରିକା ଗଠନ କରିପାରିବୁ, ତୁମରି ରକ୍ତର ପରିଚୟ ଦେଇପାରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ନେତା ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ବିଶ୍ୱ ମଣ୍ଡଳୀ ର ଭାବନା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଦାନ କର। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ତୁମେ ଦେଇଥିବା ବକ୍ତା ଭାଇ ରେଭରେଣ୍ଡ ଡକ୍ଟର ଶେଖର ନନ୍ଦଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆଜି ଆମ ମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ଉପନୀତ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କର। ଆଜିର ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦର ସନ୍ଧ୍ୟା କରିଦିଅ। ଗୌରବ ମହିମା ତୁମରି ହେଉ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମିନ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁସମାଚାର ଶୁଣିବାର ସମୟ। ଆଜି ଯୋଉ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ପାଇଛୁ ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ। ରେଭରେଣ୍ଡ ଡକ୍ଟର ଶେଖର ନନ୍ଦ, ସେ ଭବାନୀପାଟଣାକୁ ମୋର ଯାହା ମନେ ପଡୁଛି ପ୍ରାୟ 1990 ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆସିଥିଲେ। ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 35 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ସେଇ କରନ୍ତି 13 ପର୍ବ ମଣିଷ ଆଉ ଦୂତ ମାନଙ୍କର ପରି ମୁଁ କହେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଯଦି ସାକ୍ଷ୍ୟମୟ ଜୀବନ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସବୁ ବେକାର। ମୋର ଯଦି ପ୍ରେମ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସବୁ ବେକାର। ତା ଉପରେ ସେ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ସେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ଯୋଉମାନେ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଛୁ, ଆମମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ତାଙ୍କୁ ପାଇକରି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ନମସ୍କାର କରୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଣିଥିବା ବାକ୍ୟ प्रदान करिवे। शायद भाई रेवरेंड डॉक्टर शेखर नंद आप हमारा उड़िया समझ पाए। मैं आपको पाके हमारे सबों के तरफ से धन्यवाद ज्ञापन कर रहा हूं। हम लोग याद कर रहे हैं लगभग 35 साल पहले आप हमें वचन दिए थे। बहुत सुंदर वचन और बहुत सुंदर वही एक गाना जो कि गजल के हिसाब से हारमोनियम पकड़ के आप हमारे सामने गाए थे। उस समय हम लोग युवक थे, मैं शायद 18-19 साल का था
और वो दिन हम लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। आपको पाके हम लोग बहुत खुशी हैं। आप जो वचन लाए हैं हम सबों के लिए वो दीजिए, और होगा तो वही गाना थोड़ा गुनगुना दीजिएगा। अभी से 8 बजे तक आपका समय रहेगा सर। ओवर टू रेवरेंड डॉक्टर शेखर नंद। तो गाना गाने की स्थिति में तो नहीं हूं मैं फिलहाल, मेरे गले में थोड़ी समस्या है। पर फिर भी मैं वचन जरूर सुनाऊंगा। मेरी आवाज क्लियर है? यस सर। ओके। देन आज के मनन के लिए हम लोग यहेजकेल 34 अध्याय उसके 21 पद को पढ़िए। यहेजकेल 34 एंड वर्स 31। यहेजकेल नबी की पुस्तक, यहेजकेल 34 एंड 31। 34 चैप्टर वर्स 31 पढ़ दीजिए कोई। हम्म। हम्म। ପୁଣି ପୁଣି ଆମ୍ଭର ଚରାଣୀ ସ୍ଥାନର ମେଷ ଯେ ତୁମେମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟ ଓ ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟୁ, ଏହା ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। हिंदी में मैं पढ़ूंगा। तुम तो मेरी भेड़ बकरियां, मेरी चराई की भेड़ और बकरियां हो। तुम तो मनुष्य हो और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। सो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ, विशेषकर भाई डेविड के लिए, जिन्होंने इतने साल बाद मुझको याद किया, मेरा फोन नंबर कहीं से लिया और मुझे कॉल किया, मुझसे कांटेक्ट किया। मुझे पूरा ना वो दिन सारा याद आ गया। आर के सिंह पास्टर जी के साथ मैं उधर आया था भवानीपटना। उस एरिया में बहुत जगह मैंने विजिट किया। 35 साल लगभग हो रहे हैं। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि उसके नाम के नीचे हमने फिर से एक दूसरे को रिकवर किया। और आज मैं एक बार फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों के साथ परमेश्वर के वचन को शेयर करने के लिए यहाँ पर आ सका हूँ। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर पिता का भी और विशेषकर भाई डेविड का भी, जिन्होंने बड़े आदर के साथ, बड़े श्रद्धा के साथ मुझे याद किया और मुझे रिक्वेस्ट किया कि हमारे 1 तारीख की मीटिंग में आइए। मैंने खुशी खुशी उनको हाँ बोला और तब आज हम लोग फिर से इकट्ठे हैं। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ इस माध्यम के लिए कि मैं भी इतना दूर हूँ पर फिर भी आप लोगों के साथ मैं अपनी बात शेयर कर सकता हूँ। तो इन दिनों में जो कुछ प्रभु ने मुझे सिखाया है वही आपके साथ शेयर करूंगा। पर हम लोग सब जितने मसीही लोग हैं, जितने विश्वासी लोग हैं, वी आर वेटिंग फॉर द सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तैयारी में हम लोग सब बहुत सारे गीत गाते हैं, मैसेज संदेश भी सुनते हैं, सुनाते हैं कि हमारा प्रभु जल्द आने वाला है। पर जिस दिन भी वो आएगा उस दिन क्या होने वाला है उसके विषय में आज मैं बताऊंगा कि यदि वो आ गया तो क्या होने वाला है। पहला पत्रस दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसके 9 पद को पढ़िए, 8 और 9, 8, 9, 10। सेकेंड पीटर चैप्टर 3 एंड 8, 9, 10। मेरी हिंदी मैं सोचता हूँ सब लोगों के लिए बहुत इजी है। सब लोग पहले भी समझते थे, अभी भी समझते हैं सब। यस सर। तो सेकेंड उड़िया में पढ़। सेकेंड पीटर चैप्टर 3 एंड वर्स 8, 9, 10। उड़िया में पढ़ दूं सर। उड़िया में पढ़ो। किंतु हे प्रिय माने, प्रभुଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ତୁଲ୍ୟ ଓ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଯେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ତୁଲ୍ୟ, ଏହି ବିଶେଷ ବିଷୟ ତୁମେ ମାନେ ଭୁଲି ଯାଅ ନାହିଁ। ବିଳମ୍ବ ବୋଲି ଯେପରି କେତେକ ଭାବନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଷୟରେ ସେପରି ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ସେପରି ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେପରି କେହି ବିନଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତି, ବରଂ ସମସ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଏହା ଇଚ୍ଛା କରି ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ଚୋରର ପରି ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ସେହି ଦିନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ମହାଶବ୍ଦ ସହ ଲୋପ ପାଇବ,
ପୁଣି ମୌଳିକ ବସ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉତ୍ତାପରେ ତରଳି ଯିବ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଓ ତନ୍ମଧ୍ୟସ୍ଥ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବସ୍ତୁ ସବୁ ଦଗ୍ଧ ହେବ। थैंक यू। सो मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर के वचन के इस भाग के लिए कि वो हमारे लिए धीरज धरता है, लिखा है। वो कई लोग समझते हैं कि उसके आने में देर है, पर देर नहीं, वो हमारे लिए धीरज धरा हुआ है कि कोई नाश ना हो। कोई और चाहता है कि कोई भी एक जन भी नाश ना हो। और इसलिए यहाँ यहेजकेल 34 के 31 में हमने पढ़ा। उड़िया में मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ कि वो पूरी बात लिखी कि नहीं। वहाँ भेड़ शब्द मेष वर्ड यूज किया उड़िया में, पर यहाँ हिंदी में दो शब्द यूज किया। तुम तो मेरी भेड़ और बकरियां, भेड़ और बकरी। ये भेड़ और बकरी कह रहा है मनुष्यों को। उसके उसके चराई में भेड़ भी हैं, बकरियां भी हैं। और जिस दिन वो आएगा, मत्ती 25 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 25 एंड 31 एंड ऑनवर्ड्स पढ़िए एक बार। वो ये भेड़ और बकरियों का कितना बड़ा फर्क होने वाला है, उसको और ध्यान करेंगे। पढ़िए ପଢିଦେବା। मैथ्यू 25 वर्स 31 एंड ऑनवर्ड्स। ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଦୂତଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱମହିମାରେ ଆଗମନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆପଣା ଗୌରବମୟ ସିଂହାସନରେ ଉପବେଶନ କରିବେ। ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ସମସ୍ତ ଜାତି ଏକତ୍ର କରାଯିବେ। ଆଉ ମେଷପାଳକ ଯେପରି ଛାଗଠାରୁ ମେଷ ପୃଥକ୍ କରେ, ସେହିପରି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ପୃଥକ୍ କରି ମେଷମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଓ ଛାଗମାନଙ୍କୁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖିବେ। ସେତେବେଳେ ରାଜା ଆପଣା ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଲୋକକୁ କହିବେ, ଆସ, ମୋହର ପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଗତର ପତନାବଧି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଅଛି, ସେଥିର ଅଧିକାରୀ ହୁଅ। आगे आगे पढ़ लीजिए। और आगे କାରଣ ମୁଁ କ୍ଷୁଧିତ ଥିଲି, ତୁମେମାନେ ମୋତେ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଦେଲ। ତୃଷିତ ଥିଲି, ମୋତେ ପାନ କରିବାକୁ ଦେଲ। ପ୍ରବାସୀ ଥିଲି, ମୋତେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲ। ଉଲଙ୍ଗ ଥିଲି, ମୋତେ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରାଇଲ। ପୀଡ଼ିତ ଥିଲି, ମୋତେ ଶଙ୍ଖୋଳିଲ। କାରାଗାରରେ ଥିଲି, ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିଲ। पढ़ते जाइए। ସେଥିରେ ଧାର୍ମିକମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, କେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷୁଧିତ ଦେଖି ଆହାର ଦେଲୁ, ଅବା ତୃଷିତ ଦେଖି ପାନ କରିବାକୁ ଦେଲୁ? ଆଉ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରବାସୀ ଦେଖି ଆଶ୍ରୟ ଦେଲୁ, କିମ୍ବା ଉଲଙ୍ଗ ଦେଖି ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରାଇଲୁ? ଆଉ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୀଡ଼ିତ ଅବା କାରାଗାରରେ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲୁ? ପୁଣି ରାଜା ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ତୁମେମାନେ ମୋର ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଭାତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହା କରିଥିବାରୁ ମୋ ପ୍ରତି ହିଁ ତାହା କରିଅଛ। ତତ୍ପରେ ସେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱର ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ କହିବେ, ରେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ମାନେ, ମୋ ସମ୍ମୁଖରୁ ଦୂର ହୋଇ ଶୟତାନ ଓ ତାହାର ଦୂତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ଅନନ୍ତ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କର। କାରଣ ମୁଁ କ୍ଷୁଧିତ ଥିଲି, ତୁମେମାନେ ମୋତେ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଦେଲ ନାହିଁ। ତୃଷିତ ଥିଲି, ମୋତେ ପାନ କରିବାକୁ ଦେଲ ନାହିଁ। ପ୍ରବାସୀ ଥିଲି, ମୋତେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲ ନାହିଁ। ଉଲଙ୍ଗ ଥିଲି, ମୋତେ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରାଇଲ ନାହିଁ। ପୀଡ଼ିତ ଓ କାରାଗାରରେ ଥିଲି, ମୋତେ ଶଙ୍ଖୋଳିଲ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେବେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, କେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷୁଧିତ କି ତୃଷିତ, ପ୍ରବାସୀ କି ଉଲଙ୍ଗ, ପୀଡ଼ିତ କି କାରାଗ୍ରସ୍ତ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ସେବା କଲୁ ନାହିଁ? ସେଥିରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକ ପ୍ରତି ଏହା କରିନଥିବାରୁ ମୋ ପ୍ରତି ହିଁ ତାହା କରିନାହ। ଆଉ ଏମାନେ ଅନନ୍ତ ଶାସ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକ ମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଯିବେ। प्रभु ये पठित वाक्य का आशीर्वाद करो। तो यहाँ पर प्रभु ने कुछ काम के विषय में बात किया कि जो भेड़ हैं वो इन कामों में लगे हुए हैं, जो बकरी हैं वो ये सब काम नहीं कर रहे हैं। ये
काम के द्वारा उद्धार नहीं होता है, ये हम लोग सब जानते हैं। पर इफिसी 2 अध्याय में उसने चिताया। इफिसी 2 का 10 पढ़िए। इफिसियंस चैप्टर 2 and verse 10, वहां क्या लिखा है पढ़ेंगे। हालेलुया। क्योंकि हम हालेलुया। बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। उसने हमको बनाया, हमको नया जन्म दिया, हमें नया बनाया, पुराने कामों से, पापों से छुटकारा दिया कि ये काम सारे हमारे द्वारा किए जाए। उन भले कामों के लिए हम सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने, पौलुस कह रहा है कि जो पहले से परमेश्वर ने हमारे करने के लिए तैयार किया, वो कुछ काम ऐसे हैं। तो ये वो कामों की लिस्ट है। जिस दिन भी वो आया तो वो सबसे पहले चेक करेगा कि कौन कौन इन कामों में लगा हुआ है, कौन कौन इन कामों में नहीं लगा हुआ है। तो प्रभु सहायता करे कि हम लोग सब लोग बहुत ईमानदारी से इस विषय में सावधान रहे, एक दूसरे को चिताएं, समझाएं कि देखो भाई, ये छोटी बात लगती है पर बड़ी बात है, इसका रिजल्ट बहुत बड़ा है। मतलब ये छोटे छोटे काम भले ही लगते हों, पर लिखा है कि यदि इन कामों में लगे हैं तो स्वर्ग का राज हमारे लिए वो खुला हुआ है। और तब उस दिन यीशु अलग करेगा सारी जाति उनके सामने, सारी मानव जाति, उसमें विश्वासी लोग भी हैं जो इकट्ठे होंगे और उनका न्याय किया जाएगा। और जो लोग इन कामों में सहमत हैं, जो इन कामों में लगे हुए हैं, वो परमेश्वर के दाहिने स्वर्ग के राज में एंटर करेंगे। जिन लोग इन कामों में नहीं लगे हैं उनके लिए मुश्किल होगा। सो प्रभु सबकी सहायता करे कि हम उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। ये पौलुस ने चिताया हमको। सो यीशु जिस दिन भी आएगा, वो आते साथ सबसे पहले जैसे ही वो महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा स्वर्गदूतों के साथ आकर, तो सबसे पहले इकट्ठा करके चेक करेगा कि कौन कौन लोग उसके दाहिने ओर है, कौन कौन लोग बाईं ओर है। और ये लाइन किसी प्रचारक के द्वारा नहीं कहा गया, ईश्वर कह रहा है। वो जब आएगा तो ऐसा करेगा। और तब बाइबल बताती है, हम लोग सब सब इस बात को जानते हैं कि आकाश और पृथ्वी टल सकता है, पर उसकी बातें जो उसने लिख दिया, बोल दिया, वो नहीं टलेगा। और इसलिए जैसा लिखा है वैसा ही होने वाला है। सो प्रभु सबकी सहायता करे, हम इन बातों को हमेशा स्मरण रखें। जब जब मौका है, जब जब अवसर है, हम आवश्यकता में पड़े हुए लोगों की सहायता करें। बीइंग बिलीवर, हम लोग सेवा के विषय में हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के सेवक हैं। क्रॉस जो है वो दो दो डायरेक्शन देता है। क्रॉस जो है, क्रिश्चियन क्रॉस का जो जो अ, दो लकड़ी है, एक खड़ी और एक आड़ी। खड़ी लकड़ी बोलने से परमेश्वर की सेवा, और आड़ी लकड़ी बोलने से मनुष्यों की सेवा। जो व्यक्ति आवश्यकताओं में है उनकी सहायता करने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पहले से तैयार किया हुआ है कि हम ऐसे लोगों की जो आवश्यकता में हैं, समस्याओं में हैं, उनकी हम सुधि लें, सहायता करें। और बहुत सारे लोग मिलेंगे जो इवन जेल खानों में जाकर भी प्रचार करते हैं, उनकी सुधि लेते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। दरवाजा बंद करो। तो ये आज के दिन, ये इस साल के एंड में एक चैलेंज आप लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मैं रख रहा हूँ। आप सब लोग इस विषय में ध्यान करिए और प्रार्थना करिए कि प्रभु हमको बल, शक्ति, समझ, सामर्थ प्रदान करे कि हम इन कामों में जो उसने पहले से हमारे करने के लिए ठहराया है, इन कामों में लग जाएं। सब के सब, क्या छोटे क्या बड़े, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति यदि भलाई करना जानता है और नहीं करता, वो उसके लिए पाप ठहरता है। तो यदि हम जानते हैं कि हम किसी को एक गिलास पानी पिला सकते हैं पर हम यदि नहीं पिला रहे, ये हमारे लिए पाप ठहरेगा। यदि यदि हम आवश्यकता के अनुसार कपड़ों की सहायता नहीं करते, वहां लिखा है कि तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मुझे पानी पिलाए, मेरी सुधी ली, ये सारे चेकलिस्ट, ये मत्ती 25 के 31 पद से आगे, इसके इन दोनों में अपने अपने मन में लिख लें कि परमेश्वर के द्वारा ठहराए हुए इन जिम्मेदारियों को हम पूरा कर सकें।
और ये टीम वर्क नहीं, व्यक्तिगत बातें हैं। सो प्रभु सबकी सहायता करे। थैंक यू वेरी मच। प्रभु के दास भाई शेखर नंद महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सबों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वचन लाए। अभी मैं उनको गुजारिश करूंगा, हम सबों के लिए दुआ कर देंगे। उसके बाद फिर हम लोग प्रभु की प्रार्थना करेंगे। फिर वो बेनिडिक्शन देने के बाद आज का इस प्रार्थना सभा को हम यहाँ समाप्त करेंगे। तो भाई शेखर नंदा, आप दुआ कर दीजिए। प्रार्थना करें। हमारे अत्यंत दयालु प्रेमी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और धन्य नाम में आपके चरणों में आते हैं। हम आपकी महिमा बढ़ाई प्रशंसा करते हैं आज के इस विशेष दिन के लिए, जिसमें बड़े सालों बाद, 30-35 साल बाद मुझे अपने इन लोगों से मिलाया। एक बार फिर से मौका दिया कि हम आपके वचन के प्रकाश में थोड़ी देर बैठ सके और एक दूसरे के लिए हम आपके वचन के प्रकाश में प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। विशेषकर मैं प्रार्थना करता हूँ इस पूरे झुंड के लिए जो भवानीपटना और उसके आसपास है। प्रभु उड़ीसा में एक एक बड़ा मूवमेंट आ जाए आपकी सहायता से। आप सबको इन बातों की गहरी समझ और इन बातों की चेतावनी जो आपने दिया, इसको समझने की शक्ति प्रदान करें, बल प्रदान करें, उन्हें आशीष प्रदान करें कि वो केवल अपनी नहीं, दूसरों की भी चौकसी करने वाले बने, दूसरों की भी सुधि लेते हुए हम सब के सब, केवल हम नहीं, हमारे साथ बहुत सारे लोग आपकी महिमा में शामिल हो किए जाएं। इसलिए मैं एक एक जन को, जितने लोगों ने वचन को सुना है या इनके द्वारा और भी जो दूसरे लोग सुनते हैं, वो सब के सब आशीष पाए, उनको मार्गदर्शन मिले और आपकी सिद्ध मनसा जो हमारे लिए है प्रभु, आपके आने के पहले इन कामों में हम लग सके, ऐसी दया चाहता हूँ। मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, अपने आप को भी आपके चरणों में सौंपता हूँ। अपने आत्मा प्राण दे सब कुछ आपके चरणों में दिन समर्पित करने। आपकी इच्छा हम सबके जीवन से पूरी हो, प्रकट हो, आपकी महिमा होती रहे। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, हम विश्वास करते हैं, धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। लॉर्ड्स प्रेयर अपना अपना भाषा में करेंगे। आए मानकर स्वर्गस्थ पिता, तुम नाम पवित्र बोली मान्य हो, तुम राज्य आसु, जेपरी स्वर्ग रे से रूपे पृथ्वी रे तुम इच्छा सफल हो। आज मान को प्रयोजन आहार दियो। आमे जेपरी निज निज अपराधी मान को क्षमा करियछु, तेमंता मानकर अपराध सब क्षमा कर। परीक्षा रे आण नाही, मात्र मंदरु रक्षा कर। जेणु राज्य पराक्रम गौरव जुगे जुगे तुम्हार। आमीन। 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 तो आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हमारे प्रभु के दोबारा आगमन तक हर एक विश्वासियों पर जो आपके वचन से प्रेम करते हैं बनी रहे, आमीन। आमीन। प्रभु आमीन। सबको आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। आगे फिर कभी प्रभु ने चाहा तो फिर मिलेंगे। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। प्रभुଙ୍କ दासଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କର ସହିତ ପୁନର୍ବାର ମିଶିବା, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭରାତ୍ରି, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ନମସ୍କାର।